أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو شاید اسلام میں زکوٰۃ کے بارے میں چل رہا ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. ان شرائط میں یعنی وجوب زکوٰۃ کے شرائط میں ہم نے 3 شرطوں کو اس سے پہلے بیان کیا. وہ 3 شرطیں تھیں. سب سے پہلی شرط نصاب، یعنی نصاب مکمل ہونا چاہیے جب زکوٰۃ واجب ہو. دوسرے تھی سوم، یعنی جانور ہیں وہ چرتے ہوں باہر جنگل میں، گھر سے نہ کھاتے ہوں. تیسری شرط تھی حول، کہ سال ان کو پورا ہو گیا ہو. اور وہ بتایا تھا کہ سال پورا ہونے سے مراد یہاں کیا ہے زکوٰۃ کی بحث میں، یعنی 11 مہینے پورے ہو کر 12ویں مہینے چاند نمودار ہو گیا ہو تو اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سال پورا ہو جائے گا. کوئی چوتھی شرط ہے کہ وہ جانور جن کا نصاب بھی پورا ہے، سونگ بھی ان کے یہاں پایا جاتا ہے، یعنی وہ چرتے ہیں، گھر پہ نہیں کھاتے، اور سال بھی ہو گیا ہے. 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں. چوتھی شرط اس میں ضروری ہے کہ وہ عوامل نہ ہو. عوامل یعنی کام کرنے والے، عامل نہ ہو، یعنی ان سے کام نہ لیا جاتا ہو، چاہے وہ کام کھیتی باڑی کا ہو، چاہے کرائے پہ چلانے کا ہو، چاہے ان سے جو ہے پانی کنویں سے نکالنے میں وہ استعمال ہوتے ہوں، یا زمین جوتنے میں استعمال ہوتے ہوں، ان سے کام نہ لیا جاتا ہو، وہ اس طریقے کے ہوں. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عوامل نہ ہوں. وَإِنْ الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَلَّا يَكُونُ عَوَامِلٌ، یہ جانور عوامل نہ ہوں، یعنی جو گائیں، اونٹ اور بھیڑ بکری، یہ جو اونٹ ہے یا گائے بیل ہیں، گائے ہیں، یہ عوامل نہ ہوں. یہ سب چیزیں فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ، اس لیے کہ جو عوامل ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وَلَوْ كَانَتْ صَائِمًا، چاہے وہ پورے سال جنگل میں ہی کیوں نہ چرتے ہوں، اگر وہ عوامل ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے، وہ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ فَيَتِقُ بَيَانُهَا عَلَى مَقَاصِدٍ. یہ فریضہ کہہ رہے ہیں کہ جو فریضہ ہے وہ اس کا بیان موقوف ہے چند مقاصد پر، یعنی اس میں چند مقصد پائے جاتے ہیں، اس میں چند مقاصد پائے جاتے ہیں. الاول الفریضہ فی الابل، اونٹ میں کیا ہے؟ شاتٌ فی کل خمس، ہر 5 اونٹ میں ایک بکری زکوٰۃ دی جائے گی. حتی تبلغ 25، یہاں تک کہ وہ 25 ہو جائیں، یعنی 25 تک ہر 5 پر ایک بکری. 5 اونٹ ہیں 1 بکری، 10 ہیں 2 بکری، 15 ہیں 3 بکری، 20 ہیں 4 بکری، اور 25 ہیں 5 بکری. یعنی 25 اونٹ تک ہر 5 پر ایک بکری ایک ساتھ دی جائے گی. فَإِنْ زَادَتْ واحدۃ كانت فيها بنت مخاض، اگر ایک کا اضافہ ہو جائے 25 میں، یعنی 25 26 ہو جائیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ایک بنت مخاض. بنت مخاض آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا. اونٹنے کا وہ بچہ جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو. فَإِذَا زَادَتْ عَشْرًا كَانَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 کا اضافہ ہو جائے اور یعنی 26 سے تو ایک بنت مخاض، 36 ہو گئے تو ایک بنت لبون،
बिनते लबून के बारे में भी आपको दुरुस्त में तफसील के साथ बताया जा चुका है कि बिनते लबून ऊँटनी के उस बच्चे को कहते हैं कि जो अपना 2 साल पूरा करके तीसरे साल में लग गया हो, उसे बिनते लबून कहा जाता है। فإذا زادت أشهر أخرى كانت يحقا، अगर 10 का और इजाफा हो जाए, 26 से 36 और 36 से 46, तो 10 का और इजाफा हो जाए कान किया हिस्सा, तो फिर क्या है, एक हिस्सा दिया जाएगा। हिस्सा क्या होता है, जो 3 साल पूरे करके चौथे साल में दाखिल हो गया हो। फैजा ज़ादत खमसा कान किया जज़ा, और अगर जैसे फिर 5 का 15 का इजाफा हो जाए, यानी 46 में 15 का इजाफा, कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो अगर 61 हो जाए तो जजा, जजा क्या है, जो अपने 4 साल पूरे करके 5वें साल में दाखिल हो जाए, ऊँटनी का वो बच्चा कि जो अपने 4 साल पूरे करके 5वें साल में दाखिल हो गया हो। अगर किसी इंसान के पास 5 ऊँट हैं तो 1 बकरी, 10 ऊँट हैं तो 2 बकरी, 15 ऊँट हैं तो 3 बकरी, और 20 ऊँट है तो 4 बकरी, और 25 ऊँट है तो 5 बकरी, और 26 हैं तो 1 बिनते वफास, और 36 हैं तो 1 बिनते लबून, और 46 हैं तो 1 हिस्सा, और 61 हैं तो 1 जजा, 1 जजा। फइज़ा ज़ादत खमसा अशरा उखरा कानत या बिनत लबून, अगर उसमें 15 का इजाफा और हो जाए, हो जाएंगे, जल्दी बोलो, बोलो, किया जाएगा। किस तरह, वकान फी कुल्लि खमसीन हिस्सा, तो अगर वो 121 हो जाए, वकान फी कुल्लि खमसीन हिस्सा, 50 में 1 हिस्सा, तो फी कुल्लि 40 बिनत लबून, और हर 40 में 1 बिनत लबून, चाहे आप 50 का हिसाब कर लीजिए या आप 100 का हिसाब कर 40 का हिसाब कर लीजिए, चाहे 50 का हिसाब कर लीजिए। अगर 50 का हिसाब करना है तो हर 50 में 1 हिस्सा, और 40 का करना है तो हर 40 पर 1 बिनते लबून। यानी जब मिकदार इतनी हो जाए तो फिर इस तरीके से करना है कि हर बचत कर दें, या तो 50 का हिसाब कर लें या 40 का। 50 का हिसाब करेंगे तो हर 50 में 1 हिस्सा, वो बच्चा जो अपने 3 साल पूरे करके चौथे साल में दाखिल हो गया हो, लग गया हो, एक हर 50 में 1 हिस्सा। और अगर 40 पे करना चाहते हैं तो हर 40 पर 1 बिनते लबून, यानी उठने का हो ऐसा बच्चा जो अपने 2 साल पूरे करके तीसरे साल में लग गया हो, यानी हर 50 में 1 हिस्सा और हर 40 में 1 बिनते लबून। ये है निसाब के बारे में। यानी बलो हम करना भी कुल्ले अदल फर्ज कुल्ले वाहिद मिनल अमरैन कान अल मालिक बिल खियार फी इखराज अल मश, बलो हम करना भी कुल्ले अदल, तो अदल में मुमकिन हो जब आप निकालना, तो फर्ज कुल्ले वाहिद मिनल अमरैन, तो इन दोनों में से एक जो है वो सन फर्ज हो जाएगा। कुल्ले वाहिद मिनल अमरैन दोनों में से किसी तरीके से निकालेंगे, अगर जो है वो इतना मुमकिन। और मालिक बिल खियार फी इखराज अल मश, और मालिक को ये इख्तियार है कि इनमें से चाहे वो जिसको निकाले, मालिक को इख्तियार है। यानी वकान फी कुल्लि खमसीना हिस्सा, वो कहना है कि अगर बोलो हम कहना फी कुल्लि अदद फर्ज कुल्लि वाहिद मिनल अमरैन कान अल मालिक बिल खियार, तो मालिक को इख्तियार है फी कुल्लि इखराज अल मश, कि वो जोन से तरीके से इख्तियार करते हैं। फर्ज कुल्लि वाहिद मिनल अमरैन, दोनों में से कोई एक भी, यानी दोनों पर फर्ज है, कोई एक फर्ज है, और मालिक को इख्तियार है कि जिसे चाहे इख्तियार करे। मसलन चाहे 40 पे हिसाब कर ले, चाहे 50 पे कर ले। अगर 40 पे कर रहा है, मिसाल के तौर पर किसी के पास 200 हो गए, तो 40 पे कर रहा है, कितने निकलेंगे, तो 5 घंटे, यानी अगर 200 पे हिसाब कर किसी के पास 200 हो गए, वो 40 पे हिसाब करना चाहता है, तो उसे 5 घंटे लगून देने होंगे। और अगर 50 पे कर रहा है हिसाब, तो उसे 4 हिस्से देने होंगे। वाजे हुआ,
वफी कुल्ल सलासीना मिनल बकर, और ये था ऊँट का हिस्सा और निसाब। अब आइए मसलन गाय में, तो उसमें जो है वो हर चीज गाय में से तभी और तबिया देना है, एक तभी या तबिया। वफी कुल्ल अर्बईना मुसिन्ना, और हर 40 पर एक मुसिन्ना देना है। यानी गाय के गोले दो निसाब है, एक 30 और एक 40। 30 पर तभी या तबिया, और किसी के पास 40 गायें हैं तो एक मुसिन्ना देना है। भले, तो गाय के गोया दो निसाब है, हर 30 में, यानी एक 30 और दूसरे 40। अगर किसी इंसान के पास 30 गायें हैं तो वो हर 30 गाय पर एक तभी या तबिया देगा। तभी और तबिया क्या होता है? तभी गाय का वो बच्चा कि जो 1 साल पूरा करके दूसरे में दाखिल हो, तबिया तबिया किसे कहते हैं? तबिया या तबिया किसे कहते हैं? गाय का वो बच्चा कि जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल हो गया हो। ये 30 गाय पर है। अगर किसी के पास 40 गाय हैं तो हर 40 में एक मुसिन्ना देगा, यानी हर 30 में एक तबिया तबिया और हर 40 में एक मुसिन्ना। मुसिन्ना क्या है? जो गाय का वो बच्चा जो अपने 2 साल पूरे करके तीसरे साल में दाखिल हो गया हो। तो ऐसे जो है, यानी अगर किसी के पास कोई 40 गाय रखता है तो उसे मुसिन्ना देना होगा। मुसिन्ना यानी गाय का वो बच्चा कि जो अपना 2 साल पूरे करके तीसरे में दाखिल हो गया हो। ये था आज का हमारा दर्स। हमने इसमें शर्त राबे पढ़ी, जो थी कि हामिल ना हो वो जानवर, और फिर हमने फराइज़ में जो है वो बताया कि इसका बयान कुछ मौके मकासिद पर मौकूफ है। पहला मकसद जो है, पहला जो है वो क्या है? फरीजा इबिल में है, हमने उसमें बताया कि हर 5 पर एक बकरी। सही, इस तरह यहाँ तक कि 26 हो जाए तो 25 तक एक बकरी देते रहेंगे। 26 में क्या हो जाएगा? एक बिन्त मखाज देंगे, जिनकी हमने शरह की बात था अभी थोड़ी देर पहले दर्ज में। अगर फिर 10 का इजाफा हो जाए, 36 हो जाए तो उसमें बिन्त लगून देंगे। अगर जो है वो 46 हो जाए तो एक हिस्सा देंगे। सही है, फिर 15 का इजाफा हो जाए यानी 61 हो जाए तो एक जजा देंगे। और अगर जो है वो फिर 15 का इजाफा हो जाए यानी 91 हो जाए, है ना, तो क्या करेंगे? 2 बिन्त लगून देंगे। और अगर अफन 76 हो जाए तो 76 हो जाए तो हम क्या करेंगे? 2 बिन्ते लगून देंगे। और अगर फिर 15 का इजाफा हो जाए यानी 91 हो जाए तो उसमें 2 हिस्से देंगे। और इसी तरह जो है वो जब 161 पहुंच जाए तो इस तरह होगा, मसलन हर 50 में एक हिस्सा या हर 40 में 2 बिन्ते लगून, जिसको हमने वजाहत के साथ भी बयान किया है। यानी हर 50 ऊंट पर एक हिस्सा और हर 40 पर एक बिन्ते लगून। सही। और अगर जो है वो कह रहे हैं कि अगर फिर मालिक को जो है इख्तियार है कि उनमें से चाहे जिस पर इख्तियार कर लेगा, चाहे मतलब दोनों मुमकिन हो, दोनों तक पहुंच जाए, मामला ज्यादा है उसका, तो चाहे वो 40 पे हिसाब कर ले या 50 पे हिसाब कर ले। 40 पे हिसाब करेगा तो जैसे बताया कि एक बिन्ते लगून देगा 40 पर, और 50 पे करना चाहते हैं तो हिस्सा देगा। फिर बताया कि गाय के 2 निसाब हैं। गाय के 2 निसाब हैं, एक 30 और दूसरे 40। हर 30 पे एक तबिया 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 तभी और तबिया को हमने बयान किया कि तबिया गाय के उस बच्चे को कहते हैं कि जो अपना 1 साल पूरा करके दूसरे साल में लग गया हो। और हर 40 में एक मुसिन्ना। मुसिन्ना गाय के उस बच्चे को कह रहे हैं कि जो अपने 2 साल पूरे करके तीसरे साल में लग गया हो, दाखिल हो गया। الثاني في الأبدال إن شاء الله غدا سيجي نكتفي على هذا المقدار، باقي إن شاء الله غدا سيجي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. خدا حافظ. اللهم صل على محمد.